Okay, sir. सो अटेंडेंस अपने अपनी क्लास का आप लोग ले लेना शॉर्ट लिस्ट करके। सीएस का अटेंडेंस कौन लेता है? सिद्धांत। सिद्धांत सिंह। सिद्धांत हो बेटा? हाँ सर, अभी लेफ्ट किया है, अभी आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल का कौन लेता है? सत्यम। I take attendance. प्रगति, हाँ एआई का प्रगति में से तुम लेते हो ना बेटा? Yeah. ओके, तो अपना शॉर्ट लिस्ट कर लेना अलग अलग। Okay, so today I am going to start artificial. In previous class, I think I have discussed about the artificial neural network, na? Yes, sir. Yes, sir. You have input and you have a number of hidden layers, and then after just you will produce the output, right? सर And already I have discussed about some neurons, and this is just like as a human brains, and human brains having the functionality of learning, something like that, right? So today I am going to just I will brush up a little bit concept about the artificial neural network, and then after this was the artificial neural network, and definitely I had discussed some the biological concept of neural network. हमने वीडियो भी अपलोड कर दिया था, I hope आप लोगों ने देखा होगा. There are 4 fields, that is input, node, weight and output in the biological neural network as well as artificial neural network. Also, I had discussed about the architecture of artificial neural network. That is this architecture. This is hidden layer, and this is two. Sorry, this is input layer and 2 hidden layer, 1 output layer. Right. So today I will discuss about the deep learning. In a very first class, when I had started the artificial intelligence, just remember your previous class. I will show you diagram. This is natural language processing. Okay, so I had told you about the inside the artificial intelligence there is 2 technology, that is machine learning and deep learning. So deep learning is the subset of machine learning, and machine learning is the subset of artificial intelligence. हमने ऐसे बताया था आपको, ठीक है? So you can say that the deep learning is based on the branch of machine learning. मशीन लर्निंग की ही ब्रांच है डीप लर्निंग. मतलब डीप लर्निंग के इनसाइड ही आपका, सॉरी, मशीन लर्निंग के इनसाइड ही डीप लर्निंग है. कोई भी नई चीज तब आती है जब प्रीवियस चीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, लिमिटेशन होता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद मशीन लर्निंग आया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए मशीन लर्निंग आया. मशीन लर्निंग के लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए डीप लर्निंग आया. So deep learning is based on the branch of machine learning, which is subset of artificial intelligence. Since neural network imitate the human brains, so deep learning will do. Neural network क्या करता है? Human brains को imitate करता है. Deep learning भी कुछ इसी तरह से वर्क कर रहा है. It is nothing but a programmed explicitly.
डीप लर्निंग में क्या होता है, आपको एक्सप्लिसिटली अलग से कोई भी, वैसे जनरल कंप्यूटर लैंग्वेज में अगर हम देखें, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में देखें, तो यू हैव परफॉर्म, इफ यू वांट टू परफॉर्म एनी टास्क देन डेफिनेटली यू हैव टू प्रोग्राम्ड फॉर डिफरेंट टास्क। जैसे सी प्रोग्रामिंग आप लोग पढ़ते होगे, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सीएस वाले तो नहीं पढ़ रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको 2 नंबर का प्रोग्राम एडिशन करना है, तो देन यू हैव टू राइट द प्रोग्राम फॉर प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, एंड डेफिनेटली यू हैव टू राइट द एल्गोरिदम for addition of 2 number, and after that just you have to convert that algorithm into programming language. But here no need to write explicitly any program in the deep learning and machine learning, because deep learning will consider automatic on the behalf of neurons. Neurons will think automatically. जैसे हमने बताया था, human brains having a different neurons, or each and every neurons are connected to each other for transferring data from one location to another location, because every neurons are connected to each other. Already I had showed you the image of brain neurons. In the same way, and one cell is performing for a particular task. In the same way, artificial neurons also will work. So basically, machine learning class that makes a use of numerous non-linear processing units. So it is perform the feature extraction as well as transformation and something like that. The output from each preceding layer is taken as an input by each one of the successive layer. Next लेयर का आउटपुट प्रीवियस लेयर के लिए इनपुट होगा। हमने बोला रोहित को कुछ इंस्ट्रक्शन हमने दिया, तो हमारे लिए आउटपुट और रोहित के लिए वो क्या होगा, इनपुट होगा। रोहित ने आलोक को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, तो आलोक के लिए रोहित का इंस्ट्रक्शन क्या होगा, इनपुट होगा। बट रोहित को जो इंस्ट्रक्शन, आलोक को जो इंस्ट्रक्शन रोहित दे रहा है, वो रोहित के लिए क्या होगा, आउटपुट होगा। तो जैसे जैसे लेयर आगे बढ़ते जाओगे, लुक एट दिस एग्जाम फिगर, this one is the figure. This is first rectangular box represent the input layer, and second rectangular box represent the first box having the 4 inputs, and just each and every nodes are connected to each other and just perform the functionalities. And second rectangular box represent the hidden layer first, hidden layer second, hidden layer maybe third, fourth and so on. यही एक डिफरेंस है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में। मशीन लर्निंग में क्या होता है, एक लिमिटेड हिडन लेयर्स होते हैं, बट इन डीप लर्निंग अ ह्यूज नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। यू आर वर्किंग विद द लार्ज नंबर ऑफ डेटा, ओके, बट इन मशीन लर्निंग you can't work with a large number of data. एडवांटेज क्या होंगे, बेनिफिट्स क्या होंगे, ध्यान से सुनना। अगर आपके पास लार्ज डेटा सेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जितने भी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स लगा दोगे उतनी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जितने ही बैरियर्स लगाओगे, मान लो कि सपोज दैट हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए 5 हिडन लेयर लगा दिया, 5 लोगों को बैठा दिया, टेबल और चेयर लेकर के बैठ जाओ ताकि कहीं से कोई मिस्टेक ना हो। हमने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके दिया सेकंड हिडन लेयर के पास, वो फिर से एक बार पूरी तरह से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा नेक्स्ट लेयर के पास। वो अलग बात है कि सबको अलग अलग टास्क हम बांट दें। जब उसी डॉक्यूमेंट को 5 पीपल्स वेरीफाई करेंगे तो क्या कहीं से उसमें कोई गलती आएगी, आउटपुट करेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? और अगर उसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक पर्सन वेरीफाई करेगा तो मे भी हो सकता है एज ए ह्यूमन बींग्स के ब्रेन से सबको गलतियां होती हैं, तो उसमें कोई भी मिस्टेक हो सकता है हमने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैच ना करा पाए हों, वो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स हों, उसके मार्क्स ऑथेंटिकेटेड ना हो सकता है नेट पे हम वेरिफिकेशन ना कर पाए हों, कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स आप इंक्लूड करोगे उतनी ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, और यही कॉन्सेप्ट डीप लर्निंग में आया था। फॉर एग्जाम्पल डीप लर्निंग का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं।
Look at this diagram. In starting, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई बच्चे चैटिंग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? अच्छा, वो अपने अटेंडेंस लिख रहा है। सर इसका पीडीएफ भी सेंड कर दीजिएगा। हाँ यार, सोच रहे थे कि यूनिट कंप्लीट हो जाए तो सेंड कर दें, 2 टॉपिक और बचा हुआ है। Okay, look at this example. In this example, just first figure, just see on the first figure, you can see a number of faces. इस फर्स्ट फिगर में आप देख रहे हो बहुत सारे फेसेस आपको दिख रहे हैं, चेहरा दिख रहा है, छोटे 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 छोटे। जरा मोबाइल पे जूम करके देखना, यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? एक्चुअली इमेज प्रोसेसिंग का इसमें कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, हम ऊपर ऊपर से आपको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं, बहुत अंदर डीप में जाने की कोशिश ना करना, क्योंकि डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग ऐसा फाइनल वाला ईयर में पढ़ाया जाता है, पिक्सल वगैरह इमेजेस के। बट डोंट वरी, ये सब्जेक्ट ही ऐसा आपको बनाया गया है कि केवल हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन आप लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बहुत सारे फीचर्स हैं, और सारे फीचर्स जैसे कि हम कोई बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं, हम मोबाइल में फेस रिकॉग्निशन के थ्रू अपना फेस दिखाते हैं तो मोबाइल का लॉक खुल जाता है। क्या होता है, मोबाइल के अंदर मेरा फेस इनपुट हुआ, राइट? यस सर। वो क्या करता है, जो पहले से हम फेस अपना मोबाइल के अंदर कैप्चर करके रखते हैं उस फेस से डिटेक्ट कराता है। बोथ फेस मैचेज देन लॉक विल बी ओपन। अगर दोनों फेस मैच होते हैं तो लॉक हमारे मोबाइल का ओपन हो जाता है। तो इनपुट तो हमने अपना फेस दिया, उसी तरह से क्या होता है कि बहुत सारे इमेजेज हैं, उन इमेजेज को जब आप कंप्यूटर में या किसी सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में जब आप इनपुट देते हो तो कई पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिकॉग्नाइज होते हैं, इमेज रिकॉग्निशन। दिस इज टोटली कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड इमेज रिकॉग्निशन। तो कई पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉग्नाइज होते हैं। पहले क्या करेगा, पहले तो उनका जो है एक लोकल कंट्रास्ट बनाएगा, मतलब कंट्रास्ट लेवल पे उसको रिकॉग्नाइज करेगा इनपुट लेवल पे, ठीक है। उसके बाद अगले हिडन लेयर में कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगे। क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगे, इमेज को हम जो मेल है उसको अलग कर दें, कुछ मतलब उसके फेस के फीचर्स को रीड करें, जो फीमेल है उनको अलग कर दें, या जो ब्लैक है उनको अलग कर दें, जो व्हाइट है उनको अलग कर दें, हैं, जो कलर्ड इमेज है उनको अलग करो, जिनके पास बाल्स हैं, जिनके नोज बड़े हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ वो अपना कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है हिडन लेयर पे। कैसे कैलकुलेशंस, कुछ पिक्सल के बेसिस पे करता है, उनको डिटेल में जानने की जरूरत आपको नहीं है कि कैसे इमेज प्रोसेसिंग हमारा होता है। वो 4th ईयर का एक सब्जेक्ट है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, वहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है। बट यहाँ पे आप इतना जानो कि उनके फीचर्स को रीड करता है, इमेज के फीचर्स को। और फर्स्ट हिडन लेयर में मान लो कि वो नोज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने लार्ज नोज वाले हैं उनको एक साइड में करो, जितने स्मॉल आई वाले हैं उनको एक साइड में करो। फिर अगले हिडन लेयर 2 में फिर वो रीड करता है, ठीक है। तो वो फिर रीड करता है हिडन लेयर 2 में, तो वो कुछ और फीचर लेकर के हीड करता है, हो सकता है फेस का फीचर ले, हाँ, फेस के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फीचर ले, कि इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ऐसे हैं जिनके नोज सिमिलर्स हैं, उनको एक साथ रखो, जिनके आई सिमिलर्स हैं उनको एक साथ रखो, जिनके फेस का साइज सिमिलर है उनको एक साथ रखो। फिर अगला अगर हिडन लेयर आप लगाते हो तो फिर लगा दोगे कुछ आप फीचर्स उसके अंदर, कि ऐसा करो कि अब तो यहां तक आइडेंटिफाई हो गया, आगे क्या करो, आप जितने ब्लैक लोग हैं उनको एक साथ करो, जिनका ब्लैक फेस है, जिनके व्हाइट फेस है उनको एक साथ करो। और ज्यादा डिटेल में आइडेंटिफाई करना है फिर कोई और हिडन लेयर लगा दो। और सारे हिडन लेयर ये कुछ ना कुछ फीचर्स एंड फंक्शनलिटीज को कैलकुलेट करते हैं, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस जस्ट विल गो इनटू द न्यूरल नेटवर्क, दैट इज आउटपुट लेयर। जैसे फॉर एग्जांपल कभी अगर आप फोटो आपने बनवाया होगा किसी स्टूडियो में, ठीक है, अपना पासपोर्ट साइज फोटो सभी लोग बनवाते हो,
तो छोटे छोटे पासपोर्ट साइज फोटो अगर कंप्यूटर स्क्रीन पे आपने देखा होगा, तो जिस पेपर पे वो फोटो प्रिंट आउट निकालता है कलर फोटो, उस पेपर को आप देखते हो 3-4 बार डालता है प्रिंट निकालने के लिए। फर्स्ट बार डाल के प्रिंट निकालेगा तो फोटो बहुत फेड आता है। फर्स्ट क्या एक ही बार में क्लियर फोटो निकल के आ जाता है प्रिंट आउट? यस सर। नहीं, ऐसा नहीं यस सर। होता ना। बार में ही निकाल देते सर, एक सर ही बार एक ही बार में निकल जाता है। सर एक ही बार में निकाल देता है। यार हमने तो जितनी बार निकलवाया है वो 2-3 बार फोटो उसमें डालता सर, है। एक ही बार निकाले ऐसा हैं। हो सकता है टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो कोई अच्छा सॉफ्टवेयर आ गया हो, अच्छा प्रिंटर आ गया। सर हो सकता प्रिंटर है के अच्छा अंदर प्रिंटर। 2-3 बार रिपीट करता है उसको। हाँ हमने भी देखा है, हमने भी कई बार बनवाया है। तो प्रिंटर के अंदर 2-3 बार उस पेपर को डालता है, रिपीट करता है, तब 2-3 बार में जाके क्लियर साफ इमेज आता है। अब जैसे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एक बार में ही क्लियर इमेज आ जाता है, तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो प्रिंटर अच्छी क्वालिटी का आ गया हो। ठीक है। हाँ सर। तो वहां पे क्या होता है, एक बार डाला उसने, उसका एक इमेज एक मतलब रूपरेखा बन के तैयार हुआ, बाहर आया। फिर दूसरी बार डाला प्रिंटर के अंदर पेपर, तो थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह उसका क्लियर होकर के आया। तीसरी बार डाला तो और ज्यादा क्लियरनेस आया। ठीक है। तो वो जितनी बार मतलब कि हर बार एक हिडन लेयर पे वर्क करता है, कुछ ना कुछ नए फीचर्स उसमें आते हैं। तो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज अ huge number of data, and you have a large number of data, and just you have to calculate and perform the operation of those data with the help of deep learning. And because deep learning having a n number of hidden layers are used, input layer just for inputting the information and output layer just for the result display. But in hidden layer you can perform a various n number of calculations। सारे कैलकुलेशंस परफॉर्म होते हैं, फेस का, इमेज का, पिक्सल का आइडेंटिफिकेशन, फेस का आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ हिडन लेयर में ही परफॉर्म होता है। जैसे इस एबव एग्जांपल में देखो कि इस एग्जांपल में इसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा हुआ है। इन द एबव एग्जांपल गिवन एबव वी प्रोवाइड द रॉ डेटा ऑफ इमेज। जो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों का कुछ नहीं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 8x8 यानी 64 इमेज है उसमें। आप ध्यान से देखिए तो 64 इमेज आपको यस मिलेगा। सर। ठीक है। यस सर। रॉ डेटा मींस बहुत सारे डेटा इमेजेज उसके अंदर हैं। फर्स्ट लेयर क्या है? हमारा इनपुट लेयर है। एंड इनपुट लेयर में क्या हो रहा है? आफ्टर दैट देन दीज इनपुट लेयर्स विल डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ लोकल कंट्रास्ट। दैट मींस इट विल डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ कलर ल्यूमिनोसिटी। मतलब कि एक कंट्रास्ट का पैटर्न वो आइडेंटिफाई करेगा, उसका कलर फाइंड आउट करेगा और कलर के बिहाफ पे उसको आइडेंटिफाई करेगा। राइट। अब कलर के बिहाफ पे इनपुट लेयर में आइडेंटिफाई करने के बाद डिफरेंट इनपुट लेयर में आप देख रहे होगे नंबर ऑफ नोड्स हैं, एंड ईच एंड एवरी नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सारे नोड्स आपस में नेटवर्किंग की तरह कनेक्टेड हैं। तो फर्स्ट लेयर में उसने कलर के बिहाफ पे आइडेंटिफाई कर लिया, देन गोज इनटू द फर्स्ट हिडन लेयर विल डिटरमाइन द फेस फीचर्स। अब दूसरे हिडन लेयर फर्स्ट में जाएगा, वो फेस फीचर को डिटरमाइन करेगा, कितने ब्लैक फीचर्स वाले फेस हैं, कितने व्हाइट फीचर्स वाले फेस हैं। ठीक है। उनको और कुछ 2-4 प्रॉपर्टी लेकर के उनको आइडेंटिफाई करेगा। एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग दिस प्रॉपर्टी इट विल फिक्स द ऑन आईज, नोज, लिप्स। मतलब ये सब फिक्स करेगा कि सेम आईज, नोज एंड लिप्स वाले फीचर्स एक साथ हो जाएं। एंड देन इट विल फिक्स दोज फेस फीचर्स ऑन द करेक्ट फेस टेम्पलेट्स। उन फेस फीचर्स को एक अलग अलग फेस टेम्पलेट में रख देगा कि इस नोज वाले इस टेम्पलेट में रहेंगे, इस फेस वाले इस टेम्पलेट में रहेंगे, ये वाले इसमें रहेंगे। जैसे हम लोग स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वीकर स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे, मीडियम स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे, टॉपर्स स्टूडेंट एक साथ बैठेंगे। तो उससे क्या होगा कि वीकर स्टूडेंट को हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे अलग से, मीडियम को थोड़ा सा गाइड कर देंगे, टॉपर्स को एक हेल्प देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा हमें वो अपना टॉपिक कवर कर लेंगे। तो एक अलग अलग फ्रेम में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो उसी तरह से वहां पे भी इमेज प्रोसेसिंग में होता है। नाउ कम ऑन द सेकंड हिडन लेयर। अब सेकंड हिडन लेयर में क्या हो रहा है? इट विल एक्चुअली डिटरमाइन द करेक्ट फेस।
अभी तक नोज, आई, ईयर से वो आइडेंटिफाई कर रहा था, डिटेक्ट कर रहा था। अब इसमें आएगा हिडन लेयर 2 में करेक्ट फेस रिकॉग्नाइज करेगा, एक्चुअल फेस। ये जो फेस इनपुट हमारा आया है, ये फेस, जैसे कि हम लोग मोबाइल में जो इनपुट अपना फेस देते हैं, वो इनपुट फेस लेता है, वो हिडन लेयर 1 2 में अपना कुछ रिकॉग्नाइज करता है, कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है, और लास्ट हिडन लेयर में एक्चुअल उस टेकन इमेज, इनपुट इमेज का फेस और जो हम लॉक पैटर्न बनाते समय इमेज सेट कर रखे होते हैं उससे मैच कराता है। अगर मैच कर गया देन आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। सेकेंड हिडन लेयर में क्या हो रहा है कि इट विल एक्चुअली डिटरमाइन द करेक्ट फेस हियर एज इट कैन सी इन द एबव इमेज। उस एबव इमेज में करेक्ट फेस कौन सा है, आफ्टर विच इट विल बी सेंड टू द आउटपुट लेयर। इसके बाद तब वो आउटपुट लेयर को सेंड कर देता है। लाइकवाइज मोर हिडन लेयर कैन बी एडेड टू सॉल्व अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जितनी ज्यादा बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उतने ज्यादा नंबर ऑफ हिडन लेयर्स आप लगा सकते हो। सपोज दैट अगर यहाँ पे हमारे पास काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिशन टाइम पे 100 स्टूडेंट एक साथ आ रहे हैं, तो अगर एक बंदा है तो उसके लिए ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, 4 पीपल्स को अलग अलग बैठा सकते हैं कि 4 लोग एक साथ बैठे और जितने भी बच्चे हैं सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता चले, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम्स कॉम्प्लेक्स हो गई। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए वी हैव टू ऐड n नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, राइट? Yes, sir. So for a complex problem you can add more number of hidden layers if you want to find a particular kind of face having a large light complexion, so as and when the hidden layers increase we are able to solve a complex problem। अगर हिडन लेयर्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि मान लो 100 स्टूडेंट्स आए, यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बना है, किसी चीज का एग्जाम होने वाला है, तो अगर 10 लोगों को हम बुला लेंगे अपने साथ, 10 हिडन लेयर्स रहेंगे तो हमारी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कोई पेपर करा लेगा, कोई गेट पे चेकिंग कर लेगा, कोई एडमिट कार्ड चेक कर लेगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डीप लर्निंग का एक डायग्राम था, इस डायग्राम को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम डीप लर्निंग पे। होता क्या है डीप लर्निंग? ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डीप लर्निंग इज बेस्ड ऑन द ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग की ही ब्रांच है डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में जो प्रॉब्लम्स आई, जो लिमिटेशंस आई, सॉल्व नहीं हो पाई, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमारे पास डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया। बिकॉज इन मशीन लर्निंग देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ हिडन लेयर्स। बहुत ज्यादा हिडन लेयर्स मशीन लर्निंग में इंक्लूड नहीं हुए थे, जबकि डीप लर्निंग में बहुत सारे n नंबर ऑफ हिडन लेयर को आप इंक्लूड कर सकते हो, विच इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिंस न्यूरल नेटवर्क imitate the human brain, so deep learning will do in deep learning nothing is programmed explicitly। कुछ भी आपको बाहर से प्रोग्राम नहीं करना पड़ता है, it will be perform automatically just like as a human brain। ह्यूमन ब्रेन ऑटोमेटिकली थिंक करता है, लर्न करता है, डिसीजन लेता है, या उसको डिसीजन लेने के लिए किसी डॉक्टर को दवा देना पड़ता है, मेडिसिन देना पड़ता है? भाई हम लोगों का ब्रेन क्या है कि हमने कुछ इनपुट लिया, कुछ डेटा, रॉ डेटा हमारे पास आए, हमारे माइंड में कुछ विचार आए, और उन विचार के बिहाफ पे डिसीजन जो हम लोग लेते हैं वो हमारी ब्रेन की फंक्शनलिटी है ना, या उसके लिए हम कुछ अलग से प्रोग्राम करते हैं, या हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि साहब हमारे दिमाग में ये विचार आए हैं, इनका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, कोई दवा दे दो। ऐसा करते हैं क्या? नो सर। वो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन उसका सोल्यूशन निकाल लेता है ना। Yes, sir. तो डीप लर्निंग में कुछ अलग से प्रोग्राम नहीं किया जाता है। इट विल बेसिकली अ मशीन लर्निंग क्लास दैट make use of numerous non-linear processing units so as to perform the feature extraction as well as transformation। The output from each proceeding layer is taken as an input by each one of the successive layer। अभी जैसा हमने बताया कि हर एक सक्सेसिव लेयर के लिए, नेक्स्ट लेयर के लिए प्रीवियस लेयर क्या करेगा, इनपुट की तरह वर्क करेगा। Since deep learning has been evolved by the machine learning which itself a subset of artificial intelligence, as the idea behind the artificial intelligence is टू मिमिक द ह्यूमन बिहेवियर। एक हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ह्यूमन बिहेवियर की ही कॉपी बनाया जा रहा है। ह्यूमन बिहेवियर, मिमिक मींस नकल करना, मिमिक्री करना। ह्यूमन बिहेवियर की चीजों को नकल करके बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल मशीन।
So same is the idea. Deep learning is built to such algorithm can mimic the brain. इसी तरह से जैसे ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर हमारे आर्टिफिशियल मशीन में आ जाएं, तो आर्टिफिशियल मशीन क्या कर रहा है, ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर का नकल कर रहा है और अपने को उसी के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। उसी तरह से डीप लर्निंग एक हमारे ह्यूमन ब्रेन्स की कॉपी बनाना चाहता है। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन्स वर्क कर रहा है, उसी तरह से डीप लर्निंग भी वर्क करे। डीप लर्निंग इज इंप्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क। विदाउट न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग इज नॉट पॉसिबल। And the idea behind the motivation of neural network is the biological neurons. Neural network का आइडिया कहां से आया? Biological network से, which is nothing but a brain cell. Biological neurons क्या है? वो कुछ नहीं है, हमारे जो ब्रेन्स के सेल्स हैं वही हमारे biological neurons हैं। उस दिन हमने आपको प्रीवियस क्लास में इमेज दिखाया था ब्रेन न्यूरॉन्स का, याद आ रहा है? जो हमारे नर्व्स एंड सेल्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड sir. हैं ब्रेन में, वही हमारा Yes, sir. बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द डीप लर्निंग। एंड डीप लर्निंग इज अ कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल टेक्निक ऑफ मशीन लर्निंग फॉर लर्निंग फीचर हायरार्कीज। लर्निंग फीचर के लिए अभी तक क्या हो रहा था कि जो हमारा सॉफ्टवेयर में काम हो रहा था वो नॉर्मल एल्गोरिदम पे काम हो रहा था, कोई लर्निंग एल्गोरिदम नहीं था। हमारा ब्रेन लर्निंग है। तो इस तरह से डीप लर्निंग में जो हमारे फीचर्स हैं वो मशीन लर्निंग फॉर लर्निंग फीचर्स। मशीन लर्निंग में क्या आया था, थोड़ा सा लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया था, डिटेल में नहीं आया था। डीप लर्निंग में और डिटेल में लर्निंग कॉन्सेप्ट आ गया था। That actually based on the artificial neural network. So actually you can say that a deep learning is implemented by the deep network. These are the deep network. Already I have showed you this diagram, this example of the deep network, which are nothing but a neural network with a multiple hidden layer. Deep network का डायग्राम क्या है? एक न्यूरल नेटवर्क का ही डायग्राम है। न्यूरल नेटवर्क में हिडन लेयर लिमिटेड होते हैं, 1 और 2, इसमें मल्टीपल हिडन लेयर लगा दो, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? डीप नेटवर्क में हो जाएगा। तो डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो आगे हम बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, clear. Yes, sir. Okay, now come on the next topic. Come on the next topic. That is type of artificial neural network. Type of artificial neural network. ठीक है, जिसमें फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, 7 टाइप के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं, जिसमें 7 टाइप्स आपको नहीं पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में ओनली 2 टाइप्स दिया है। ठीक है, 2 टाइप के आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आपको पढ़ना है। रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क एक है, first one is the recurrent neural network. The principle of recurrent neural network, just a minute, hold. एक मिनट होल्ड करो बेटा। Recurrent neural network क्या होता है? It is a type of artificial neural network. This principle of recurrent neural network is to feed back of the output of layer back to the input again. अभी तक क्या हो रहा था? इनपुट से आउटपुट की तरफ हम फीड फॉरवर्ड टाइप का नेटवर्क यूज कर रहे थे। प्रीवियस डायग्राम के याद करो,
आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। फीड करते रहे इनपुट, आगे फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। जैसे इनपुट लेयर में इमेज फीड हुआ, कैलकुलेट हुआ, फिर हिडन लेयर फर्स्ट में फीड हुआ, फिर आगे बढ़ा फॉरवर्ड हुआ, फिर हिडन लेयर 2 में फीड हुआ, फिर फॉरवर्ड हुआ, एंड देन आउटपुट में फीड हुआ। तो दैट वाज द फीड फॉरवर्ड। बट इन द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जस्ट इसका अपोजिट होता है, आउटपुट से इनपुट की तरफ बैक होता है। आउटपुट क्या आया है, आउटपुट कैसे आया, उससे प्रीवियस इनपुट पे गए, उससे प्रीवियस इनपुट पे गए, उससे प्रीवियस इनपुट पे गए। जैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई क्राइम अगर हो जाते हैं तो जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पहले तो ये देखा जाता है क्राइम क्या हुआ है, इवेंट्स क्या हुए हैं। अच्छा, वो इवेंट हुआ तो कैसे हुआ, पहले आउटपुट को देखा जाता है ना, तब इनपुट की तरफ आगे बढ़ा जाता है। अच्छा, ये इवेंट ऐसे हुआ, अगर ये इवेंट ऐसे हुआ तो इसमें, इस घटना में किसका हाथ हो सकता है, क्यों हो सकता है, पहले ये देखो कि इनके संपर्क में आया कौन कौन था। तो फिर पता चला कि 2 लोग संपर्क में आए थे, दोनों लोगों को बुलाओ, दोनों लोगों से पूछताछ होता है। तो वो अगेन 1-2 लोगों का नाम लेते हैं कि 4 दिन पहले ये इनके साथ भी गए थे घूमने। तो आउटपुट से पीछे पहुंचते एक्चुअल में सोर्स स्टार्ट कहां से हुआ था, घटना इंसिडेंट स्टार्ट कहां से हुआ था, उस निचोड़ तक पहुंच जाते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते करते। ठीक है, तो इस तरह से हमारा रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है, इट इज फीडबैक टू द आउटपुट ऑफ एवरी इनपुट्स। अगेन द प्रिंसिपल हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द आउटकम ऑफ द लेयर। प्रेडिक्शन होता है कि हमारे लेयर का आउटकम क्या हो सकता है। इट इज अ कंप्यूटेशनल प्रोसेस, मतलब एक कंप्यूटेशनल प्रोसेस होता है, कोई भी प्रोसेस कंप्यूटेशनल ही होता है, चाहे वो माइंड में कंप्यूटेशन हो या कहीं अदर कंप्यूटेशन हो, ऑलरेडी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होता है। जैसे कि ईच न्यूरॉन्स विल एक्ट एज अ मेमोरी सेल, हमारे माइंड में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो मेमोरी सेल की तरह वर्क कर रहे हैं कि नहीं। वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में मेमोरी सेल है न्यूरॉन्स के अंदर, तभी चीजों को याद करके रखते हैं। कंप्यूटर के अंदर जैसे मेमोरी होता है, भाई हम 4 दिन पहले हमने आपको क्या पढ़ाया था, वो चीज तो हमारे दिमाग में याद है। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे माइंड में स्टोर हैं, कि कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर हैं। तो हमारे माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, दैट विल एक्ट एज अ मेमोरी सेल and the neurons will retain some information as it goes to the next time stamp। जो हमारे न्यूरॉन्स में कुछ इंफॉर्मेशन होल्ड होके रहती हैं, वो फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे लिए इनपुट की तरह वर्क करता है। इट इज कॉल्ड एन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस बोलते हैं। रिकरेंट की मीनिंग क्या होती है बेटा? हेलो, Repetition. Yes, sir. What is the meaning of recurrent? Repetition. हाँ, रिपीट होना, रेपिटेशन होना। ठीक है, तो वही चीज हमारे न्यूरॉन्स में होते हैं, हमारे मेमोरी सेल में। जैसे कोई कुछ इंसिडेंट हमारे पास हो जाते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई दूसरा इंसिडेंट होते हैं तो हम लोगों को चीजें बार बार वही पुरानी चीजें रिपीट होती हैं, माइंड में आती हैं। यार ये हमने चीज किया था तो ये हो गया, ये गलत काम किया था तो ये हमारे साथ घटना हुई थी। उन चीजों से हम लोग बचने की कोशिश करते हैं। It is called as recurrent neural network process. The data to be used later will be remembered and work for the next step will go on this process. जैसे ह्यूमन ब्रेन्स के अंदर हमें पता था कि गाड़ी की स्पीड, हम 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहे थे अभी 1 हफ्ते पहले, तो थोड़ा सा एक्सीडेंट होते होते हम बचे हैं। तो वो घटना, वो इंसिडेंट हमारे माइंड में याद है, रिमेम्बर है। अब हम वर्क फॉर द नेक्स्ट स्टेप विल गो ऑन द प्रोसेस। जब भी हम नेक्स्ट स्टेप कभी भी गाड़ी चलाएंगे या उस रूट से गुजरेंगे तो देखेंगे कि ये रोड सही नहीं है,
और यहाँ पे हमें इस स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस घटनाएं हमारे दिमाग में याद आ रही हैं। तो जो हमारे रिपीटेशंस हैं न्यूरल नेटवर्क में हैं, जो मेमोरी सेल में चीजें रिमेम्बर्स हैं, वो क्या करती हैं कि इट विल हेल्प टू परफॉर्म नेक्स्ट स्टेप। वो टाइम स्टेप की तरह वर्क करती है नेक्स्ट स्टेप को परफॉर्म करने के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस। दिस प्रेडिक्शन विल इंप्रूव बाय द एरर करेक्शन। ये जो प्रेडिक्शन है वो हमारे एरर करेक्शन को क्या करेगा, इंप्रूव करता है। एरर के आने के चांसेस कम रहते हैं। जब एरर नहीं आएगा तो फिर उसको करेक्ट नहीं करना पड़ेगा। इन द एरर करेक्शन सम चेंजेस आर मेड टू क्रिएट द राइट प्रेडिक्शन आउटपुट, जिससे हम क्या होगा, हम राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, एक राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करेंगे, जिससे हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं, राइट आउटपुट। दिस लर्निंग रेट is the rate of how fast the network can make the correct prediction from the wrong prediction. ये भी this is also a kind of learning process। ये भी एक हमारा learning process का ही kind है। भाई माइंड में चीजें लर्न हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि आज हम अगर बाइक से जा रहे हैं उसी रोड से, हम क्यों 80 की स्पीड में बाइक नहीं चला रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ते पहले हमने यही गलती किया था। तो हमारे माइंड में वो घटनाएं कहीं ना कहीं मैप हैं, इसलिए हम पहले से अलर्ट हो जा रहे हैं, जिससे एरर भी आने के चांसेस कम है, फॉल्ट भी होने के चांसेस कम है, और रिस्क भी को भी हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है। और बिकॉज आवर माइंड ब्रेन इज लर्निंग, सो वी कैन इज द रेट ऑफ हाउ फास्ट द नेटवर्क कैन मेक द करेक्ट प्रेडिक्शन। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रेडिक्शन भी आगे फास्ट होगा, करेक्ट होगा। भाई अपने से अगर थोड़ी सावधानी से हम रहेंगे तो वही चीज होता है कि जब हमारा मशीन का में डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट को लगा रहे हैं, अगर वो रेकरेंट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है जिसमें रिपीटेशन से अलाउड है, तो वो क्या करेगा, फॉर ईच एंड एवरी इनपुट्स एंड आउटपुट्स के लिए वो क्या करेगा, थिंकिंग बिहेवियर की वे में वर्क करेगा। थिंक करके चलेगा कि पिछली बार हमने अगर ये इनपुट दिया था तो ये आउटपुट आया था, या इस आउटपुट से ये इनपुट करेक्ट था कि नहीं। सारी सिचुएशंस को, पॉसिबिलिटी को लेकर के चलेगा। सो इट करेक्ट प्रेडिक्शन फ्रॉम द रॉन्ग प्रेडिक्शन। ये एक रॉन्ग प्रेडिक्शन से राइट प्रेडिक्शन की तरफ मूव करेगा। So there is a much application for a recurrent neural network। बहुत सारे applications हैं recurrent neural network के, and one of them is the model of converting the text to speech। उसी में से एक है text को speech में convert करना। Recurrent neural network was designed for supervised learning and without any requirement of teaching signal। एक supervised learning जैसे कि self driving car होता है, उसमें कोई आपको हेल्प करने के लिए, टीच करने के लिए सिग्नल नहीं होता है। वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन, फॉग है तो स्लो हो जाएगा, ट्रैफिक लाइट चल रहा है तो स्लो हो जाएगा। ठीक है, उसमें ऑटोमेटिक सुपरवाइज्ड लर्निंग लगा होता है, जिससे वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता रहता है, बिकॉज उसमें ड्राइवर तो है नहीं। तो वो कार के अंदर ही ऐसे फीचर्स, लर्निंग फीचर्स फिट कर दिए गए हैं सेल्फ ड्राइविंग कार में। उसके डिवाइस के अंदर, मशीन के अंदर एक हमारे ब्रेन की लर्निंग जैसा फीचर फिट कर दिया गया है कि उसके बिहाफ पे वो वर्क कर रहा है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज द कन्वोल्यूशनल नेटवर्क न्यूरल नेटवर्क। दिस इज द सेकंड टाइप। टोटल 7 टाइप्स के होते हैं, बट इन 7 टाइप्स में सिर्फ 2 टाइप्स ही हमारे सिलेबस में है, तो बाकी अन्य से वैसे तो अभी हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग भी आपको नाम लिया। सुपरवाइज्ड लर्निंग भी एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट वो सिलेबस में नहीं दिया है, तो उसको छोड़ो, मत जानो, क्या जानने की जरूरत है। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल का मतलब क्या होता है? स्वीपिंग। एक लूप की तरह। अरे तुम डिक्शनरी में देख के पता नहीं कौन सा पेची पेचा शुद्ध हिंदी बोल रहे हो कि हमें खुद नहीं समझ में आएगा। एक लूप की तरह मतलब घुमावदार जिसको कहते हैं, ठीक है, एक लूप में चलता रहता है, लूप में चलता रहता है।
गोले के अंदर वही चीज चल रहा है बार बार। जैसे हम लोगों के माइंड में क्या होता है, कोई एक चीज, छोटे बच्चों के दिमाग में एक चीज आकर के फिट हो जाता है, तो वो बच्चा वही चीज बार बार सोचता रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक लूप की तरफ वर्क होता है। इसमें भी नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे हिडन लेयर होते हैं, और हिडन लेयर के पहले इनपुट लेयर लगे होते हैं, बट इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड देन आउटपुट लेयर। बट यहाँ पे क्या है कि वन हिडन लेयर कैन बी वर्क एज अनदर हिडन लेयर्स। In this type of neural network, learn able to biases and weight are given to the neurons. Neurons, हर एक न्यूरॉन्स के लिए उसका वेट दिया होता है, गिवन होता है। ठीक है, जैसे लुक एट दिस एग्जांपल, दिस वन एग्जांपल, इनपुट लेयर x1 x2 x3 xn एंड उसके करेस्पॉन्डेंस उसका क्या है, वेट है। तब इनपुट लेयर along with weight goes into the neurons and neurons perform calculations, then it will produce the output. Okay, so कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क में क्या हो रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क यू हैव टू वर्क ऑन द लूपिंग कॉन्सेप्ट्स एंड लूप हाउ इट विल वर्क। लूपिंग कॉन्सेप्ट, इसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा लूप का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है, सी प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे। CS को अभी नहीं पता होगा, बट देखो लूप का कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि जहां से स्टार्ट हो और वहीं पे वापस आ जाए और बार बार वो प्रोसेस चलता रहे। तो इन दिस टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, लर्न एबल टू बायस एंड वेट आर गिवन टू द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के पास उनके इनपुट्स एंड करेस्पॉन्डिंग देयर वेट्स होते हैं। सो इमेज प्रोसेसिंग, इमेज हम लोगों का जो पिक्चर होता है, इमेज होता है, इमेज प्रोसेसिंग में जनरली ये यूज होता है कि आपने एक बार इनपुट इमेज दिया, इमेज इनपुट गया मशीन के अंदर, उसको डिफरेंट डिफरेंट हिडन लेयर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। पहले उसको पिक्चल वाइज किया, जो लार्ज इमेज है उनको एक साथ करो, जो स्मॉल इमेज है उनको एक साथ करिए, फिर जो जिनका ब्राइटनेस ज्यादा है उनको एक साथ करिए, जिनका ब्राइटनेस कम है उनको एक साथ कीजिए, फिर फेस रिकॉग्नाइज करिए, लार्ज नोज वाले एक साथ कीजिए, स्मॉल नोज, लार्ज आई, स्मॉल आई, है कैटेगरी वाइज वो होता जाता है। सो इमेज प्रोसेसिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग आर सम ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ये इसके एप्लीकेशन हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के, इमेज प्रोसेसिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। सिग्नल जो ट्रैफिक सिग्नल हम लोग यूज करते हैं, इनमें हमारा कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। इट इज आल्सो एप्लीकेशन इन द कंप्यूटर विजन फील्ड। The image are remembered in the part to help the network in computing operations. जो इमेज इनपुट हम लोग देते हैं वो कंप्यूटेशनल प्रोसेस करने के लिए उनके हर एक छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करता है, रिमेंबर करके रखता है। The photos are recognized by taking the input features batch wise. तो डिफरेंट डिफरेंट हिडन लेयर्स हैं that will work as a batch. ठीक है, तो बैच वाइज होते हैं। इन द कंप्यूटिंग प्रोसेस, जब हमारा इमेज का कंप्यूटेशनल प्रोसेस होता है, टोटली इमेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है, एक रफ आइडिया हम आपको बता रहे हैं कि कैसे वर्क होता है। जैसे जो गुड इमेज हमारे हैं, अच्छे इमेज हैं, वैसे भी इन जनरल लाइफ में हम लोग क्या करते हैं कि जब फोटो, बहुत सारे इमेज हमारे हाथ में आते हैं, जो अच्छे वाले फोटो हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो खराब वाले फोटो हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो जो हमारी कंप्यूटेशन प्रोसेस होते हैं, इमेज इज कन्वर्टेड टू ग्रे स्केल फ्रॉम HSI और RGB स्केल। ये इमेज प्रोसेसिंग के मेजरमेंट के स्केल्स हैं, HSI एंड RGB। और इनको बता दें HSI क्या होता है। यस सर। यस सर। चलो एक बार रफली देख लो, रिमेम्बर करने की कोई जरूरत नहीं है। HSI तुम्हारा होता है कलर स्पेस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव कलर मॉडल फॉर इमेज प्रोसेसिंग। मीन्स एक इमेज प्रोसेसिंग में कलर के बिहाफ पे शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि किसका कलर इसके स्केल यू है, सैचुरेशन है, इंटेंसिटी कितनी है उसकी। ठीक है, तो HSI में 3 पार्ट होते हैं। H स्टैंड फॉर यू, S स्टैंड फॉर सैचुरेशन एंड I स्टैंड फॉर इंटेंसिटी।
और आरजीबी होता है, आरजीबी एक मेजरमेंट का स्केल होता है कि इमेज को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो आरजीबी का इसमें इमेज प्रोसेसिंग में वर्क जो होता है वो इस तरह से वर्क करता है कि सपोज दैट कोई इमेज आपका सेंस हुआ, सेंसिंग कैपेबिलिटी, ये मेटलैब का पार्ट है, काफी एडवांस पार्ट हो जाता है। बस इतना आप जानो कि रेड स्केल इमेज, ग्रीन स्केल इमेज एंड ब्लू स्केल इमेज होता है, आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। तो उस इमेज में हमारे जो स्केल मेजरमेंट हैं, कुछ रेड कलर एरिया होते हैं, कुछ ग्रीन कलर एरिया होते हैं और कुछ ब्लू कलर एरिया होते हैं। तो उन एरिया को आपस में कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। सो इन क्या करता है, HSI एंड RGB स्केल से ग्रे स्केल में कन्वर्ट करता है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ इमेज इज डन इनटू वेरियस कैटेगरीज। इमेज की क्लासिफिकेशन को बहुत सारी कैटेगरी में निर्धारित किया गया है, ठीक है। आफ्टर द इमेज इज ट्रांसफॉर्म, जैसे इमेज इनपुट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। न्यूरॉन्स का हमारे वर्क क्या होते हैं, न्यूरॉन्स का वर्क यही तो होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, यानी फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। Yes, sir. ठीक है। उसी तरह से जब whenever your image is going into the machine will transform that image into characterized wise, categories wise. So ages are detected by finding out the pixel value, changes, color value and all those things. और सत्यम भाई भाभी। सो ये रहा आपका कन्वोल्यूशनल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में, कि कन्वोल्यूशनल इमेज प्रोसेसिंग भी आपका न्यूरल नेटवर्क के बिहाफ पे ही वर्क करता है। थोड़ा सा इसमें इमेज प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा आ गया है, इसलिए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगा, बट कोई बात नहीं। देखिए नीचे डायग्राम में आते हैं, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एक अब डायग्राम आपको हम दिखा देते हैं, उससे हो सकता है कुछ मैपिंग आपके माइंड में बन जाए। देखिए ये है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का डायग्राम है, जिसमें ये इमेज इनपुट जा रहा है, कन्वर्जन यहाँ पे हो रहा है। अब बहुत सारे इमेजेस जब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होंगे तो एक पूल में जा करके खड़े हो रहे हैं। पूल का मतलब ये होता है पुलिंग प्रोसेस। जैसे कि हमने कंप्यूटर में प्रिंट आउट देने के लिए कमांड दे दिया, 10 लोग एक साथ कमांड दे दिए, तो एक पूल जॉब पूल में जाकर के खड़ा हो जाता है वो सारे कमांड, और उसमें 1 बाय 1 प्रिंट आउट निकलता रहता है। जिसने पहले कमांड दिया उसका पहले प्रिंट आउट निकलेगा, जिसने बाद में कमांड दिया उसका बाद में प्रिंट आउट निकलेगा। तो एक पूल में जाकर के कन्वर्ट होने के बाद, इमेज कन्वर्ट होने के बाद पूल में जाके स्टैंड हो जाते हैं। देन कन्वर्जन प्रोसेस होता है। अब इमेज का वहां पे कन्वर्जन प्रोसेस हो रहा है। फ्लैटन में कन्वर्जन होते हैं इमेज। जैसे कि कंप्यूटर की कोई इंफॉर्मेशन जब हम इनपुट देते हैं तो वो इनपुट इंफॉर्मेशन हमारा कहाँ जाते हैं, वो इनपुट इंफॉर्मेशन हमारा इमेज को थोड़ा इधर कर दें, पूरा इमेज नहीं दिख रहा है। वो इनपुट इंफॉर्मेशन हमारा जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर में, और मशीन क्या करता है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो उसी तरह से जो पूल से कन्वर्ट होकर के हमारा इमेज फ्लैटन में गया, एंड देन उसको फिर न्यूरल नेटवर्क में हम भेजते हैं, और न्यूरल नेटवर्क में सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैलकुलेशंस परफॉर्म होने के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सीधे आउटपुट यूनिट में जाता है। ठीक है। तो दिस इज द रफली डायग्राम फॉर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। इसको हम उठा के यहाँ से वहां पे कॉपी कर देते हैं आपके नोट्स के पास। 2 टॉपिक और बचा है, कल इसको पढ़ाने के बाद हम आपको नोट्स भेज देंगे, इस यूनिट 4 का नोट्स एक साथ। ठीक है, ठीक सर। Okay, sir. छोटे छोटे Okay, पार्ट, thank you, sir. छोटे छोटे पार्ट्स में नोट भेजते हैं तो कई फाइलें हो जाती है, आप भी कंफ्यूज पड़ जाते होगे। एक यूनिट का एक साथ नोट्स रहता है, ज्यादा सही रहता है मेरे समझ से आपके। हैं? Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. सर कॉलेज कब खुल रहा है? अभी ये सर बता दी। तो एग्जाम आ गए हैं, 3rd ईयर 4th ईयर के 18 तारीख से हैं। सर ऑनलाइन होगा सर हम लोग का एग्जाम सर अप्रैल में पोस्टपोन हो गया क्या?
अभी तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी मार्च वाली ही इंफॉर्मेशन है, आप मार्च ही मान के चलो। पॉलिटेक्निक का था। आप अपने माइंड में जो शेड्यूल आया है उसी को मान करके चलो, उसी हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। सर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन? अभी तक ऑफलाइन का ही शेड्यूल आया है, कोरोना के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पा रहे होंगे, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ठीक है, आप लोग प्रगति मिश्रा, Yes, sir. just you will take attendance of your respective branch and one student also ना for किसके लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए कौन लेता है एआई का? सीएस के लिए। सीएस में सर, हैं? CS में सर। प्रैक्टिकल के लिए प्रगति लेती है। प्रगति इधर- मिश्रा सीएस में